Today we have to start with a new unit, that is solid state. All of you know that any given substance may exist in solid, liquid or gaseous state depending upon the two opposite tendencies. What are these two tendencies? First is mutual attraction. First is mutual attraction and second is escaping tendency. Escape from each other. There are two tendencies. One is tendency of mutual attraction and second is tendency to escape from each other. These are the two opposite tendencies, and on the basis of these two tendencies, substances may be exist in solid, liquid or gaseous state. जैसे if mutual attraction जो tendency है is very greater than escaping tendency, then the substance exists in solid state. And if the mutual attraction is greater than escaping tendency, then your substance exists in liquid state. And if the mutual attraction is very less as compared to escaping tendency, then your substance exists in gaseous state. देखो बेटा, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे दिस, that is mutual attraction is greater than the escaping tendency. Solid एक 3 dimensional substance है, 3 dimensional study है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है और सॉलिड क्या होता है आपका 3 डायमेंशनल. लिक्विड आप ज़्यादा फिजिक्स में पढ़ते हो एंड गैसियस स्टेट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो. तो ये तीनों ही टॉपिक नीट में भी और JEE में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सॉलिड स्टेट आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं. सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होता है बेटा? सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर. सॉलिड क्या है? सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप नोट्स बनाते जाना, इन विच द सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सॉलिड को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें सॉलिड में. ड्यू टू दैट sufficient force of attraction, solids are rigid. Solids कैसे होते हैं? Rigid होते हैं. Solids have definite shape होती है, definite volume होता है. Solid है definite shape, definite volume due to presence of this sufficient force of attraction. Solids have, due to this property, solids have high density. solid की density क्या होती है? high होती है. You can say that slow rate of, very slow बल्कि लिख सकते हो आप, very slow rate of diffusion. very slow rate of diffusion. These are the some general properties of solids जो आप 9th 10th में पढ़ते आ रहे हो. डिफ्यूजन आपको पता है इंटरमिक्स होना. एक गैस है, जैसे आपने धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई, गैस बहुत जल्दी पूरे रूम में स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है, दैट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का रेट गैस में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि गैस के अंदर लार्ज स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. और सॉलिड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इट इज़ वेरी लेस, बहुत ही कम होता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉलिड. टाइप्स ऑफ सॉलिड on the basis of arrangement of constituent particles. 2 टाइप के बेटा सॉलिड होते हैं. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए अमोर्फस सॉलिड. amorphous solid, and the second one is
your crystalline solid, crystalline solid. You can write one line. Crystalline solid, the constituent particles have regular, definite, fixed, you can say that, fixed arrangement in 3D. कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका क्या होगा, एक रेगुलर, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा इसमें 3D, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. बट अमोर्फस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स does not have regular or fixed, definite, you can say that, arrangement. Constituent particle does not have regular, fixed or definite arrangement in 3D. तो ये है on the basis of constituent particles arrangement. The solids are divided into 2 types, that is amorphous solid and crystalline solid. Crystalline solids जो होते हैं बेटा, they are highly ordered. They are highly ordered. इसका मतलब समझो, जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल है, NaCl की हम बात करें तो 1 Na पॉजिटिव सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव, 1 Na पॉजिटिव सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव. कैसे, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक लेफ्ट और एक राइट. तो यही अरेंजमेंट क्या होगा, दूर दूर तक आपका रिपीट होता रहेगा. तो ये क्या होता है, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. क्या है, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, हाईली ऑर्डर्ड. ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड लेस ऑर्डर्ड इन नेचर. ये क्या होता है बेटा, लेस ऑर्डर्ड इन नेचर. थर्ड पॉइंट यू हैव टू राइट, crystalline solid whenever it is hammered, crystalline solid देखो, crystalline solids whenever it is hammered, hammered का मतलब जब हम इसको तोड़ते हैं, इसको crystalline solids को, it breaks into small particles, it breaks into small particles of identical shape, it's break into small particles of आइडेंटिकल शेप. बहुत ध्यान से सुनना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब आप हैमर तोड़ते हो तो वो क्या करता है, ब्रेक्स हो जाता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. को जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका साइज कैसा होगा, शेप कैसी होगी, सेम होगा. जैसे अगर आप NaCl का एक क्रिस्टल ले लेते हो और उसको आप ब्रेक करते हो और फाइनल पाउडर फॉर्म में ले जाते हो तो हर पार्टिकल्स को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सब के सब कैसे मिलेंगे आपको, आइडेंटिकली सेम. Important point है, when crystalline solids are hammered, they breaks into smaller particles of identical size. But amorphous solid जो बेटा, amorphous solid लिख लो, amorphous solid does not give particles of same shape. amorphous solid को जब हम hammered तोड़ेंगे तो particles जो हमें फाइनली मिलेंगे वो सेम शेप के नहीं मिलेंगे. does not on hammered does not gives particles of same shape. और इसमें हमें क्या मिलेंगे, particles of same shape when it is hammered, जब आप इसको तोड़ते हो. किसको, that is crystalline solids को. बहुत ध्यान से सुनना. जैसे मान लो हम बात करते हैं NaCl, बहुत ध्यान से सुनना. NaCl is made up of Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, then it is Cl negative Na positive, Cl negative Na positive, Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, Cl negative Na positive, Cl negative Na positive. ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो आप इधर मूव करते हो तो इधर आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इधर जाते हो तो आपको सिर्फ क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है तो उसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में अलग आएगी, इस डायरेक्शन में अलग आएगी, इस डायरेक्शन में अलग आएगी। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाती है, क्या हो जाएगी, डायरेक्शन डिपेंडेंट, उनको हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक, एंड दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दीज आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। दैट इज जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज are direction dependent. Physical properties are direction dependent. जब हम constituent particles को अरेंज करते हैं तो उनमें जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके का हो जाता है, डिफरेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इनके ऊपर डिपेंड करेगी वो बदल जाएगी, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक यू कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन निकालते हैं किसका, AgI, सिल्वर आयोडाइड का, एक डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव आता है तो दूसरी डायरेक्शन में क्या आता है, नेगेटिव। तो दिस प्रूव दैट कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है इट इज ए डायरेक्शन डिपेंडेंट। बहुत ध्यान से सुनने को बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यदि हम बात करें, ग्रेफाइट आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लेयर्ड। ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट एक्ट एज गुड कंडक्टर। बहुत ध्यान से देखा, अगर हम ग्रेफाइट में इधर से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ओके। बट अगर हम इधर से पास करें तो क्या हुआ, एक लेयर से इलेक्ट्रॉन दूसरी लेयर में जंप कर जाएगा। तो इस डायरेक्शन में ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, लेकिन इस डायरेक्शन में ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो दीज आर द एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है दीज आर द डायरेक्शन डिपेंडेंट, ओके। देन वी हैव टू कम ऑन दिस, these are not anisotropic in nature. Amorphous solids are not anisotropic in nature. इसका मतलब these are isotropic in nature. Isotropic का मतलब क्या हुआ, physical properties are same in all the direction. Physical properties क्या होंगी इसमें, same होंगी in all the directions. किसमें, that is in amorphous solid. Amorphous solid में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये कैसे होंगी आपकी, सेम होंगी इन ऑल द डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या मानते हैं, ट्रू सॉलिड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। अगर आप एक्स एक्सिस में चले जाओ, वाई एक्सिस में चले जाओ, जेड एक्सिस में चले जाओ, सभी डायरेक्शंस में एक जैसा आपको अरेंजमेंट मिलेगा। दीज आर कंसिडर्ड एज true solids and amorphous solids are known as pseudo solids. क्या बोलते हैं इनको, pseudo solids. These are also known as supercooled liquid. These are also known as supercooled liquid. देखो बेटा, जैसे गिलास है, गिलास में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, that is considered as supercooled liquid, that is pseudo solid. अगर आप ओल्ड बिल्डिंग्स की विंडोज देखो तो नीचे से वो क्या होगी, मोटी हो जाती है, ऊपर से पतली। क्यों, फ्लो करता है कौन, ग्लास, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी इट इज कंसिडर्ड एज सुपरकूल्ड लिक्विड।
अगर आप पुरानी बसों को देखो, स्लाइडिंग गिलास लगे हुए हो, देखो वो गिलास मूव करना बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे से वो कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट इज फ्लूइडिटी, एंड दे आर कंसिडर्ड एज, बोलो, सुपर कूल्ड लिक्विड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव sharp and fixed, you can say that, sharp or fixed value of melting point. इनका melting point क्या होता है, फिक्स, शार्प. जैसे ही वो टेम्परेचर आएगा सॉलिड आपका किसमें बदल जाएगा बेटा, लिक्विड में बदल जाएगा. इसमें दिस अमोर्फस सॉलिड डज नॉट हैव, अमोर्फस सॉलिड डज नॉट हैव शार्प और यू कैन से दैट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, इसमें होता है रेंज में होता है, इसमें होता है रेंज में होता है. तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड. ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बोर्ड के लिए. अमोर्फस सॉलिड अब आपका यहीं पर ही खत्म होता है. अमोर्फस के बारे में अब आगे कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में. चैप्टर में जो स्टडी है वो किसकी है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसकी स्टडी है क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं इसमें, जस्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना बेटा, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोल्ड और स्मूथ कूलिंग. ध्यान से सुनना, कंट्रोल्ड और स्मूथ कूलिंग ऑफ द लिक्विड. कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are obtained by controlled and smooth cooling of the liquid, whereas amorphous solids are obtained by the sudden cooling of the liquid. sudden cooling से हम देखते हैं. इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊँ, एक टर्म आती है बेटा आइसोमोर्फस. आइसोमोर्फस, आइसो का मतलब होता है सेम, मोर्फस का मतलब यू कैन से दैट इज शेप और स्ट्रक्चर. आइसोमोर्फस क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम स्ट्रक्चर, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, इट इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम स्ट्रक्चर. जैसे आपने सुना होगा ग्रीन विट्रोल. क्या है बेटा, ग्रीन विट्रोल. ग्रीन विट्रोल आपका क्या होता है, दैट इज FeSO4 7H2. एक होता है व्हाइट विट्रोल, दैट इज ZnSO4 into 7H2. These two are different substances but they have same structure. इनका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो क्या है, सेम है. तो these are isomorphous, व्हाइट विट्रोल एंड ग्रीन विट्रोल. आइसो का मतलब समझ में आया, सेम. मोर्फस का मतलब स्ट्रक्चर. टू डिफरेंट के लिए यूज होता है ये. एक होता है बेटा पॉलीमोर्फस. क्या होता है, पॉलीमोर्फस. पॉली का मतलब होता है मोर देन वन. पॉली का मतलब क्या होगा बेटा, मोर देन वन. मोर्फस मीन्स दी सेम, दैट इज सेम और स्ट्रक्चर. ये हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर सेम सब्सटेंस. सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस जब एग्जिस्ट करता हो, when the same substance exists in two different forms or two different structures, they are known as polymorphous. जैसे आपने सुना होगा ZnS, जिंक सल्फाइड. इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, जिंक ब्लेंड और वुड्सडाइट. WUSTZIT, वुड्सडाइट. बेटा अगर आपने देखा हो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो हर एलिमेंट के साथ HCP, BCC, CCP ऐसे लिखे होते हैं. वो सारे इसमें डिटेल में आएंगे. वो क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं. जो ये वुड्सडाइट है ये HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और जिंक ब्लेंड किसमें एग्जिस्ट करता है, दैट इज CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग. तो दीज आर द टू टर्म्स तो आपको ध्यान रखनी है. आइसोमोर्फस यूज्ड फॉर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम स्ट्रक्चर, एंड पॉलीमोर्फस फॉर द सेम सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट इसमें आता है बेटा
types of crystalline solid, types of crystalline solids on the basis of constituent particle. You can write types of crystalline solid on the basis of constituent particles and force of attraction between the constituent particles. Crystalline solids are divided into, that is, 4 types. Divided into बोलो 4 types. First is the ionic solid. First क्या आपका ionic solid. Ionic solid में बेटा जो constituent particles है, ionic solid में क्या बेटा जो constituent particles है, they are different ions. Constituent particles आपके क्या होंगे? different एक मिनट. Constituent particles are different ions. Different ions का मतलब that is cations and anions होंगे. These are held together by the electrostatic force of attraction. इससे जुड़े हुए होंगे electrostatic force of attraction and that is known as ionic bond. उसको हम क्या कहेंगे? ionic bond. देखो आपने कभी भी NaCl को ऐसे नहीं देखा होगा लिखा होगा. कैसे लिखते हैं? NaCl. या you can write like this, Na positive Cl negative. और ये क्या है? force of attraction. तो ionic solid में जो constituent particles होंगे वो क्या होंगे? different ion. different होगा opposite ion. That is cation and anion. force of attraction क्या होगा? electrostatic force of attraction. that is known as ionic bond. और जो ionic solid होते हैं बेटा दे आर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. तो ड्यू टू दिस दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो इस पॉइंट को नोट करना. आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस. एक्वस सॉल्यूशन मोल्टन स्टेट में क्या होंगे? आयंस में टूट जाएंगे एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन दे एक्ट एज द गुड कंडक्टर. इसका काम करेंगे गुड कंडक्टर. बट इन सॉलिड स्टेट नो आयंस आर फ्री. कोई आयंस फ्री नहीं है एंड दे एक्ट एज बैड कंडक्टर. फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, ये आपका क्या होगा? आयनिक सॉलिड. सेकंड आपका आता है बेटा दैट इज कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट. atoms of same or different types. Atoms of same or different types. These are held together by which type of force? That is covalent bond. इससे जुड़े होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं. कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल जैसे यू नो दैट डायमंड. कार्बन कार्बन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं. टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट होता है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में क्या होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. यू कैन सी द मे बी कंडक्टर. जैसे ग्रेफाइट तो कंडक्टर अभी भी आपको बताया था और डायमंड नहीं है. सिलिकॉन कार्बाइड एक ही ग्रुप के मेंबर है. डायमंड में क्या होता है? कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल. कार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन, देन दिस विल गिव राइज टू सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेनम. ओके, देन थर्ड वन इज योर मोलिकुलर सॉलिड. मोलिकुलर सॉलिड. मोलिकुलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो क्या? दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल्स. और ये आपस में किससे जुड़े होते हैं बेटा? बाय वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किससे जुड़े होंगे? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं. जैसे आपने देखा आइस. आइस में क्या है? वाटर वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड.